یہ حسب معمول نعت پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 2-3 شعر مجھ سے بھی سن لیجئے۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ تعالی پیر پیرا میر میراں شاہ جیلاں سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس زندگی کا وہ گوشہ آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا جس سے آپ اپنی زندگی کے نشیب و فراز میں انقلاب لائیں اور ان صالحین کرام کے مقدس نقش قدم پر چل کر کے اپنی بقیہ زندگی کو گزاریں۔ اسی کی ایک کڑی پاسبان ملت قاطع نشدیت سلطان الواعظین حضرت علامہ مشتاق احمد صاحب قبلہ نظامی علیہ رحمت و رضوان کی ذات گرامی بھی ہے۔ سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر سے جو حالہانہ عشق و محبت حضرت علامہ نظامی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے دل میں دیکھیے تو واقعی یہ ان کا حصہ ہے۔ نظامی صاحب اپنی جماعت کے بہت ہی مشہور و معروف عالم دین، مناظر اعظم، خطیب بے مثال، مصنف وقت، استاذ العلماء، عمدۃ الخطبہ، شاہین قال، جو بھی کہا جائے ان کے شایان شان ہے۔ الہ آباد کے رہنے والے تھے۔ الہ آباد سے تھوڑی دور کی سرزمین ہے ایک سرائے غنی، وہاں کے بہت عظیم زمیندار تھے آپ۔ ساری جائیداد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کر دیا۔ پوری زندگی تقریروں کے نذرانوں کو آپ نے اپنے جامعہ دارالعلوم غریب نواز میں نظر کر دیا۔ نظامی صاحب رحمت اللہ علیہ کی وہ ذات ہے کہ آج بھی مخالف کیمپ میں ان کا نام لیا جائے تو وہ کانپنے لگتے ہیں۔ سن 71 میں ہمارے ضلع گونڈہ میں ایک مناظرہ ہوا تھا ببھن گاؤں شکرولی، جس کی پوری رپورٹ میرے پاس موجود ہے۔ اس وقت ہم سب کا بچپنا تھا، ابتدائی تعلیم میں ہم لوگ تھے۔ نظامی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ وہاں کے مناظرے میں زبانی تقریری مناظرہ کرنے کی حیثیت سے، مناظر کی حیثیت سے تشریف فرما تھے۔ نظامی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب آج بھی خون کے آنسو 2 جلدوں میں ہے۔ اگر دیانتداری کے ساتھ کوئی بھی صاحب انصاف، سلیم الطبع، شریف ذہن رکھنے والا پڑھا لکھا مطالعہ کرے تو وہ سوچنے پر مجبور ہوگا کہ خون کے آنسو سے جو راستہ متعین کیا جا رہا ہے ہمارے لیے وہی صراط مستقیم ہے، اور ہم اسی راستے پر چل کر کے ہدایت کے راستے پر رہ سکتے ہیں۔ آج تو دنیا میں بہت ساری قومیں ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، اور بہت سارے حضرات اپنے نظریات و فکر کو آپ کے سامنے پیش کر کے اپنے حق ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ لیکن آپ نے کبھی غور کیا کہ آپ کیوں چیلنج کرتے ہیں کہ نہیں حق پر ہم ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اپنے فکر کی بنیاد پر اور اپنے ہوش مندی اور دانش مندی کی بنیاد پر چیلنج نہیں کرتے ہیں، بلکہ آپ کے پیچھے واقعات اور ماحول اور آپ کے اسلاف کا وہ زندہ جاوید طریقہ کار موجود ہے کہ جس پر آپ چل رہے ہیں، اور آپ انہی کے طریقہ کار کو اپنے راہ حق کے حق ہونے کی دلیل بنا کر دوسروں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر دنیا کی اس وقت ساری جماعتیں لے لی جائیں، مگر کسی جماعت میں آپ ولی نہیں پائیں گے۔ اگر ولی آپ پائیں گے تو جماعت اہل سنت میں۔ اسی لیے ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ جماعت اہل سنت ہی نجات پانے والی جماعت ہے۔
इसके अलावा जितनी जमातें अपने आप को हक होने का दावा करती हैं वो बिल्कुल गलत है, बातिल है। 16 आना गलत। दलीलों की जरूरत पड़ेगी तो मैं कहीं लंदन का नहीं हूं, आप मुझसे दलीलें ले सकते हैं। बहरहाल नात शरीफ के 2-3 शेर सुन लीजिए, फिर बात आगे बढ़ जाए और कल का छूटा हुआ हिस्सा आपके सामने बयान हो जाए। मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ दें तो बात आगे बढ़े। सल्लल्लाहु अला नबी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातो सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दिल है बेकरार का दिल है बेकरार, दिल है बेकरार का दिल है बेकरार। देखने को तैबा की बहार, दिल है बेकरार का दिल है बेकरार। जर नहीं कि चल सकूं मैं पर नहीं कि उड़ सकूं, जर नहीं कि चल सकूं मैं पर नहीं कि उड़ सकूं। और जोर है न ताब है कि अपने दर से टल सकूं, जोर है न ताब है कि अपने दर से टल सकूं। या रसूल अल्लाह आप गर करम करे तो दर पे मैं मचल सकूं, दर पे मैं मचल सकूं। अपनी बेकसी पे हूँ हुजूर अश्कबार। दिल है बेकरार का दिल है बेकरार। देखने को तैबा की बहार, दिल है बेकरार का दिल है बेकरार। आपने बुलाया जिन्हें वो खुश नसीब हैं, वो खुदा के प्यारे हैं जो आपसे करीब हैं। आपने बुलाया जिन्हें वो खुश नसीब हैं, वो खुदा के प्यारे हैं जो आपसे करीब हैं। या हबीब अल्लाह एक नजर इधर भी हो कि हम बहुत गरीब हैं, एक नजर इधर भी हो कि हम बहुत गरीब हैं, हम बहुत गरीब हैं। कब घड़ी वो आएगी, कब घड़ी वो आएगी है जिसका इंतजार। दिल है बेकरार का दिल है बेकरार। देखने को तैबा की सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखने को तैबा की बहार, दिल है बेकरार का दिल है बेकरार। शामियाना रहमती वहां पे है तना हुआ, शामियाना रहमती यहाँ भी है तना हुआ। मजमे मलाइका वहां पे है लगा हुआ,
मजमे मलाइका यहाँ भी है लगा हुआ, हर कोई भिखारी उस जगह का है बना हुआ, हर कोई भिखारी उस जगह का है बना हुआ, नूर से भरा हुआ, नूर से भरा हुआ मदीने का दया, दिल है बेकरार का दिल है बेकरार, देखने को तैबा की बहार, दिल है बेकरार का दिल है बेकरार, दिल है बेकरार। दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातु सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस शान से हस्सान बोले, फिदाए हामिल कुरान बोले, गुलामी मोती ईमान बोले, वो नुक्ता रस दकीका दान बोले, अदब का मतलय ताबान बोले, वह अहसनु मिन कलम तरक्कत ऐनी व अजमल मिन कलम तलदिन निसाऊ, खुलिकता मुबर्रान मिन कुल्ले ऐबिन कान का कत खुलिकता कमा तशाऊ, हजार बार बुशोयम दहंज मुश्को गुलाब, हुनूज नाम तो गुफ्तन कमाले बेअदबीश। हजरात, रब ताला ने कुरान अजीम में इरशाद फरमाया, वो कुरान जो रब ने अपने महबूब पर नाजिल फरमाया, जिस कुरान की तरह कोई किताब नहीं और जिस कुरान के किसी एक नुक्ता किसी एक जबर जेर पर कोई शुबहा करने की गुंजाइश नहीं, वह कुरान जो हुदल लिन्नास है। रब ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, खबरदार, बेशक अल्लाह के दोस्तों को ना कोई खौफ है और ना कोई गम। अल्लाह कुरान अजीम में अपने दोस्तों के ताल्लुक से यह बयान फरमाता है। उसके दोस्त कौन होते हैं? तो रब ताला आगे कुरान में बयान फरमा रहा है, अल्लज़ीना आमनू वो कानू यत्तकून, जो ईमान लाए और तकवा इख्तियार किए, मुत्तकी हुए, परहेजगार हुए, वो अल्लाह के दोस्त कहे जाते हैं। अल्लाह ताला ने अपने दोस्तों के ताल्लुक से इरशाद फरमाया, खबरदार, जो अल्लाह का दोस्त है उसे कोई खौफ नहीं। अपने बंदों को खबरदार करता है, अपने बंदों को आगाह फरमाता है। बंदों, हमारे बंदों में वो हमारे बंदे जो हमारे दोस्त हैं, हमारे करीब हैं, हमारे महबूब हैं, उनके लिए कोई खौफ नहीं है, उनके लिए कोई खतरा नहीं है, उनके लिए कोई गम नहीं है। आइए आप अंदाजा लगाइए और देखिए, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आका फरमाते हैं कि जब अल्लाह का कोई बंदा नवाफिल के जरिया से अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लेता है। नवाफिल, आप गौर कीजिए, आका हदीस में नवाफिल का लफ्ज इरशाद फरमाते हैं। उलमा बैठे हुए हैं, इनसे आप पूछो, नवाफिल में सिर्फ नवाफिल नमाज ही नहीं है, बल्कि नवाफिल में नवाफिल की बहुत सारी इबादतें हैं। नवाफिल के जरिया से जब कोई बंदा रब का कुर्ब हासिल कर लेता है तो आका इरशाद फरमाते हैं कि रब ताला उसका हाथ हो जाता है जिससे वो पकड़ता है, रब ताला उसके पांव हो जाता है जिससे वो चलता है, रब ताला उसकी जबान हो जाता है जिससे वो बोलता है, अल्लाह उसकी आंख हो जाता है जिससे वो देखता है। आप ताज्जुब करोगे कि सुबहानी साहब ये कौन सा जुमला बोल रहे हो? रब ताला तो आंख, हाथ, जबान, पांव, इन सारी चीजों से पाक है, वो तो बेऐब है, वो जिस्म जिस्मानियात से पाक है, जिस्म जिस्मानियात से उसका कोई ताल्लुक नहीं।
आओ प्यारे अल्लाह के हबीब के इरशाद पर गौर करो। उलमा इसकी तशरीह फरमाते हैं, आंख होने का मतलब यह है कि रब ताला अपनी ताकतों कुव्वत का जलवा अपने उस महबूब बंदे की आंख में वदीयत फरमा देता है। अब उसका महबूब बंदा देखता है तो गोया रब का देखना हुआ। रब ताला अपनी ताकतों कुव्वत का जलवा उसे अता कर देता है। उसका चलना रब का चलना, उसका पकड़ना रब का पकड़ना, उसका बोलना रब का बोलना। आका इरशाद फरमाते हैं, इत्तकू बिफरासतिल मोमिन फइन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। मोमिन के नूरे बातनी से डरो, इसलिए कि वह अल्लाह के नूर से देखता है। सरकार ये इरशाद फरमाते हैं कि मोमिन के नूरे बातनी से डरो, अल्लाह के नूर से वो देखता है। आइए इस हदीस का मतलब आपको मैं अर्ज करता चलूं ताकि आपकी समझ में बात आ जाए। इत्तकू बिफरासतिल मोमिन फइन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। मोमिन के फरासते बातनी से डरो, यानी उसके बारीक बीनी से आप डरते रहो, अल्लाह के नूर से वो देखता है। एक यहूदी ने सरकार की इस हदीस को पढ़ा, वो सोचने लगा कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मोमिन के निगाहे बातिनी से डरो, इसलिए कि वो अपने निगाहे बातिन से नहीं देखता है बल्कि उसका देखना अल्लाह के नूर से देखना होता है। तो लाओ मैं देखूं कितने मोमिन हैं। उसने अपने लिबास को बदल लिया, लिबास बदल करके जिसके सामने जाता कहता, इस हदीस शरीफ का मतलब बता दीजिए। इत्तकू बिफरासतिल मोमिन फइन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। मोमिन के निगाहे बातनी से डरो, इसलिए कि वह अल्लाह के नूर से देखता है। तो सारे लोग इसका जाहिरी तौर पर तर्जमा कर दिया करते थे। वो सोचता था कि ये मोमिन नहीं है, मैं तो जाहिरी तौर पर मुसलमान बना हूं, अंदर से यहूदी हूं, ये मेरे यहूदियत को देख नहीं पा रहे हैं और जाहिरी तौर पर मुझको देख करके कह दिया करते हैं तुम मुसलमान हो। ये पूछते पूछते हजरत जुनैद बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हो की बारगाह में पहुंचा। हजरत जुनैद बगदादी के सामने पढ़ना शुरू किया कि हुजूर मैं एक हदीस का मतलब पूछने आया हूं। आपने फरमाया कौन सा मतलब, कौन सी हदीस है, पढ़ उसको। उसने कहा इस हदीस का तर्जमा आप हमको बता दीजिए। इत्तकू बिफरासतिल मोमिन फइन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। मोमिन की निगाहे बातिनी से डरो, इसलिए कि वह अल्लाह के नूर से देखता है। तो हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं कि तू जैसे अपना जाहिरी लिबास बनाए हुए है, ऐसे तू अंदर से भी कलमा पढ़ ले और अंदर से भी मुसलमान हो जा। उसने अर्ज किया सरकार मैंने मान लिया, अब मैं कलमा पढ़ करके मुसलमान हो रहा हूं, लेकिन मैंने बहुत से लोगों से इस हदीस का मतलब पूछा था, लोग नहीं बता पाए। तो आप फरमाते हैं सुन, जितने लोगों से तुमने सवाल किया उनमें बहुत अल्लाह के नेक बंदे थे जो तुझको जानते थे, तेरा राज जाहिर कर देते, लेकिन तेरा इस्लाम लाना मेरे हाथ पर मुकद्दर था, इसलिए तू यहां तक चल करके पहुंचा है। अब आप जरा गौर फरमाइए कि अल्लाह के वली की शान ये होती है, वो निगाहे बातनी से देखता है। जिस चीज को हम नहीं देखते उस चीज को वो देखता है। हमारी निगाह तो जाहिरी तौर पर देखा करती है, मगर अल्लाह का नेक बंदा वो बातनी तौर पर देखता है। हम अपने दिल में सोचें उसको भी वो देख लेता है, अपने ख्याल में कोई बात लाएं वो भी उस पर मुनकशिफ हो जाती हैं। वो लौहे महफूज पर निगाह उठाए उसको भी देखता है, वो तहतुस सरा तक निगाह डाले उसको भी वो देखता है। आप ताज्जुब करोगे आखिर हमारी भी आंखें हैं और उसकी भी आंखें हैं, वो भी खाता पीता है, मैं भी चलता फिरता हूं, हमारी और आपकी उसकी निगाह में फर्क क्या है? तो प्यारे दोस्त फर्क यही है कि उसने रब का कुर्ब हासिल कर लिया है, और जब अल्लाह का बंदा रब का कुर्ब हासिल करता है, उसका दोस्त हो जाता है, तो उसके दिल की एक अजीब कैफियत हो जाती है। उसका दिल साफ शफाफ आईना हो जाता है और उसके दिल पर इरफान की बारिश होती है, और जब इरफान की बारिश होती है तो उस इरफान के ताल्लुक से उसकी निगाह रोशन हो जाती है। अब उसकी निगाह की रोशनी मामूली नहीं रहती है, बल्कि इसी ताल्लुक से अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं कि मन अरफा नफ्सहु फकद अरफा रब्बहु। जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। बात बहुत दूर पहुंच गई तसव्वुर
तसव्वुफ की बात हो रही है। आपको समझने में दिक्कत होगी, लेकिन बात जाहिर करता चलूं मैं। आप सोचते होंगे कि आखिर हम भी तो खाते पीते हैं, हम भी नमाज पढ़ रहे हैं, एक बंदा ये भी नमाज पढ़ रहा है, हमारे और इसके अंदर फर्क क्या है? आखिर इसकी निगाह क्या देखती है और हम क्या नहीं देख पा रहे हैं? यही तो वजह है प्यारे कि निगाहों में जरूर फर्क है। अगर निगाहों में फर्क ना होता तो हम और आप जरूर बराबर करार दे दिए जाते। निगाहों में फर्क है, चालों में फर्क है, जिस्मो जिस्मानियात में फर्क है, मरातिब में फर्क है, जिसमें कि हर आज़ा में फर्क है। रब ताला ने सब में फर्क रखा है और हर एक अपने फर्क और अपनी इम्तियाजी शान की बुनियाद पर पहचाना जाता है। अब आप अपने जहन को साफ करते हुए चलिए कि अल्लाह का बंदा अपने बातनी नूर से कैसे मुलाहजा किया करता है और वो कैसे देखा करता है, उसकी निगाह क्या देखा करती है। यही हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुगल हुकूमतों में सबसे बेहतरीन अच्छे हाकिम इस्लाम हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह का नाम पाया जाता है। आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह एक मर्तबा दिल्ली रमजान शरीफ के महीना में पहुंचे और दिल्ली के जामा मस्जिद में नमाज तरावीह पढ़ने के लिए उन्होंने सोचा। वो जब दिल्ली में रहते थे रमजान शरीफ के महीना में तो तरावीह की नमाज दिल्ली के जामा मस्जिद में अदा किया करते थे। चुनांचे हजरत आलमगीर ने सोचा कि इस महीने में मैं रमजान में जब दिल्ली में रह रहा हूं तो जामा मस्जिद में मैं नमाज तरावीह पढ़ूं। तमाम सलातीन मुगलिया में यही एक ऐसे सुल्तान गुजरे हैं जो हाफिज कुरान थे, आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह। चुनांचे नमाज तरावीह पढ़ने के लिए दिल्ली के जामा मस्जिद में पहुंचे। उस वक्त दिल्ली के जामा मस्जिद में नमाज तरावीह पढ़ाने के लिए मुसल्ले इमामत पर हजरत अल्लामा मुल्ला मुहिब्बुल्लाह बिहारी रहमतुल्लाह ताला अलैह थे। जब कुरान वो तिलावत करने लगे तो हजरत आलमगीर ने एक जगह लुकमा दे दिया। मुल्ला मुहिब्बुल्लाह बिहारी आगे पढ़ते चले गए। जब नमाज खत्म हुई तो हजरत आलमगीर ने फरमाया कि मैंने यहां लुकमा दिया था, आयत इस तरह से है। मुल्ला मुहिब्बुल्लाह बिहारी ने कहा जिस तरह मैं तिलावत करता हूं आयत इस तरह से है। चुनांचे दोनों बुजुर्गों में बात बढ़ गई, कुरान मंगाया गया और कुरान का एक नुस्खा खोला गया तो हजरत मुल्ला मुहिब्बुल्लाह बिहारी जिस तरह से आयत करीमा तिलावत कर रहे थे आयत उस तरह से है। फिर दूसरा नुस्खा मंगाया गया तो मुल्ला मुहिब्बुल्लाह बिहारी ही की तायद में आयत देख रहे हैं। फिर तीसरा नुस्खा कुरान का मंगाया गया, उसमें भी आयत करीमा उसी तरह से तहरीर है जिस तरह से मुल्ला मुहिब्बुल्लाह बिहारी तिलावत फरमा रहे थे। चौथा नुस्खा कुरान अजीम का मंगाया गया, हजरत मुल्ला मुहिब्बुल्लाह बिहारी जैसे तिलावत कर रहे हैं, आयत करीमा इसी तरह से तहरीर है। पांचवा नुस्खा जब कुरान का मंगाया गया तो आलमगीर जिस तरह से तिलावत कर रहे थे आयत करीमा उस तरह से तहरीर है। मुल्ला मुहिब्बुल्लाह बिहारी ने दलील कायम की कि कुरान इस तरह से आयत लिखी हुई है और एक नुस्खा में आयत इस तरह से है जिस तरह आप तिलावत कर रहे हैं, इसलिए चार नुस्खे में आयत की तायद जिस तरह हो रही है वो बात तस्लीम की जाएगी। हजरत आलमगीर को जोश आया। आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी टोपी उतारी और मुल्ला मुहिब्बुल्लाह बिहारी के सर पर रख दिया। टोपी का रखना था। आप फरमाते हैं अब बताओ आयत करीमा किस तरह से है। मुल्ला मुहिब्बुल्लाह बिहारी की निगाह लौहे महफूज पर देख रही है। मुल्ला मुहिब्बुल्लाह बिहारी कहते हैं आलमगीर मैंने सही मान लिया, आयत करीमा जिस तरह से आप तिलावत कर रहे हो उस तरह से लौहे महफूज में तहरीर है। ये अल्लाह वालों की निगाह है। मुल्ला मुहिब्बुल्लाह बिहारी कुरान के पारों में देख रहे हैं, कागज के सतहे पर देख रहे हैं, मगर अल्लाह का बंदा लौहे महफूज पर देख रहा है। ये है निगाहे मोमिन की बात, ये है निगाहे मर्दे मोमिन। आप आइए जरा देखते हुए चलिए। आज एक जहन ये हमें जहन दे रहा है, आज मुखालिफ तबका हमें ये फिक्र देने की कोशिश कर रहा है कि तुम इन कब्रों के पास जाया करते हो और इन कब्रों से तुम क्या हासिल किया करते हो, इन मिट्टी के ढेरों से तुम्हें क्या मिला करता है। ये जहन देने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन एक बात और मैं अर्ज करता चलूंगा इस जिम्मेदार स्टेज से, मुसलमानों आज ऐसे कुछ हरामखोर निकल गए हैं और कुछ बदमाश औलादें ऐसी इब्ने आदम में हो गई हैं कि जो मिट्टी के ढेरों को बना करके और कब्रें निकाल करके बुजुर्गियत का दावा कर रहे हैं और फर्जी कब्रों को तामीर कर करके बिदात करवाश दे रहे हैं। ऐसे हरामखोरों के लिए इस्लामी हुकूमत होती तो इनकी गर्दन मार दी जाती। सुनो प्यारे, अल्लाह का वली पहचाना जाता है, अल्लाह का वली छुपता नहीं है। और अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं मन दारा बिला मजारिल फलानतुल्लाह अलैह, जिसने
نے بلا مزار کے کسی صاحب مزار کی زیارت کی معاذ اللہ اس پر اللہ کی لعنت ہے. بلا صاحب مزار کی قبر بنا لی جاتی ہے, اس پر چادریں ڈال دی جاتی ہیں, وہاں پر ڈھونک دھتورا کیا جاتا ہے, وہاں پر لوبان سلگائے جاتے ہیں, وہاں پر اگربتیاں سلگائی جاتی ہیں. مذہب اسلام کا تعلق ان چیزوں سے نہیں ہے. اللہ کا ولی جہاں جلوہ افروز ہوتا ہے جنگل کو منگل بنا دیا کرتا ہے. خلق خدا خود اس سبحان اللہ چھپایا کرتی ہے. خواجہ غریب نواز کا روضہ چھپا نہیں ہے, محبوب الہی کا روضہ چھپا نہیں ہے, حضرت چراغ نصیر الدین دہلی کا روضہ چھپا نہیں ہے, شیخ محقق کا روضہ چھپا نہیں ہے, مختوم ماہمی کا روضہ چھپا ہوا نہیں ہے, حضرت بسم اللہ شاہ کا روضہ چھپا ہوا نہیں ہے. یہ وہ بزرگان دین ہیں جن کا تقدس ہے اور جن کی زندگی کا پاکیزہ ماحول آج بھی ہمارے اور آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے. آج بھی ان کی شاہراہیں ہمارے اور آپ کے لیے دیدہ عبرت بنی ہوئی ہیں. آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں پیارے, میں عرض کر رہا تھا کہ مخالف طبقہ سے یہ بات بہت زور و شور کے ساتھ نشر کی جاتی ہے. ان لوگوں کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے, ان میں کوئی دم نہیں ہے, لیکن یہی مخالف طبقہ ڈاکٹر اقبال کو تسلیم کرتا ہے اور ڈاکٹر اقبال کی فکر کو بھی مانتا ہے. اگر پڑھے لکھے لوگ کچھ موجود ہیں جو ڈاکٹر اقبال کے غزلیات اور ڈاکٹر اقبال کے نظمیات پر اپنی زندگی کو ایسے ماحول میں لے جا کر کے مطالعہ کرتے ہیں اور کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہندوستان کی سرزمین پر اردو زبان میں تصوف کا مزاج پہچانتے ہوئے ایسا کوئی شاعر نہیں گزرا ہے جس طرح سے ڈاکٹر اقبال رہے ہیں. ڈاکٹر اقبال کو مفکر اسلام کہا گیا, ڈاکٹر اقبال کو کسی نے محقق بھی کہا, ڈاکٹر اقبال کو بہت سراہا گیا, ڈاکٹر اقبال کی بڑی تعریفیں کی گئی. آج بھی ڈاکٹر اقبال کی لکھی ہوئی نظموں کو نصاب میں داخل کیا جاتا ہے. آج بھی ڈاکٹر اقبال کے فکر کو لوگ پہچان رہے ہیں اور بڑی تعریفیں کر رہے ہیں. یہی ڈاکٹر اقبال ہیں. ڈاکٹر اقبال جب حضرت شیخ مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر حاضر ہوئے سرہند شریف, حضرت شیخ احمد مجدد الف ثانی کے روضے اقدس پر حاضر ہوئے سرہند میں. حاضر ہونے کے بعد جب ان کے روضہ کو دیکھتے ہیں اور ان کے قبر کی زیارت کرتے ہیں تو حضرت شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ کے روضہ کو دیکھ کر کے ڈاکٹر اقبال اشارہ کرتے ہیں کہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان کے زور بازو کا, کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان کے زور بازو کا. اس بات کو کس بنیاد پر کہا ڈاکٹر اقبال نے؟ یہی حضرت شیخ مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ ہیں. حضرت شیخ مجدد الف ثانی کے شہزادوں کے استاد ملا طاہر تھے. ملا طاہر کو ایک روز حضرت شیخ مجدد نے دیکھا تو ان کی پیشانی پر لکھا ہوا تھا بدبخت. ملا طاہر کی پیشانی کو ملاحظہ کرنے کے بعد حضرت شیخ احمد مجدد الف ثانی نے اپنے بچوں سے کہہ دیا کہ تمہارے استاد کی پیشانی کو میں نے دیکھا, اس کی پیشانی پر بدبخت لکھا ہوا ہے. بچوں نے جا کر کے اپنے استاد سے بتا دیا کہ ابا حضور آج ایسے کہہ رہے تھے. ملا طاہر بہت ہی معتقد تھے مجدد الف ثانی کے, آئے اور قدموں پر گر پڑتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ حضور آپ ایسا کیجئے, سرکار میرے لیے دعا فرما دیجئے, حضور آپ کی نگاہ باطنی نے دیکھ لیا ہے, میری بدبختی کے تعلق سے آپ دعا فرمائیں. چونکہ حضرت شیخ مجدد کی دعا بڑی مقبول تھی کہ مستجاب الدعوات یہ ہیں اور ان کی دعائیں قبول ہو جایا کرتی ہیں. حضرت شیخ مجدد الف ثانی نے دعا کرنی شروع کی, الہ العالمین ملا طاہر کی بدبختی کو نیک بختی میں بدل دے, مولا ملا طاہر کی بدبختی کو نیک بختی میں بدل دے. چنانچہ آپ دعا فرماتے جا رہے ہیں اور ملا طاہر کی پیشانی پڑھتے جا رہے ہیں مگر پیشانی کی تحریر نہیں بدلی. حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے آخر میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا, مولا میں تیری بارگاہ میں تیرے مقبول بندے حضور غوث اعظم پیر پیرا میر میرا شاہ جیلا شیخ سیدنا محی الدین عبد القادر جیلانی بغدادی کا واسطہ پیش کر رہا ہوں. میرے اللہ غوث پاک کے صدقہ میں ملا طاہر کی بدبختی کو نیک بختی میں بدل دے. رب کی بارگاہ میں یہ دعا مانگتے ہیں. اب حضرت مجدد الف ثانی ان کی پیشانی کو دیکھ رہے ہیں تو ان کی پیشانی پر نیک بخت لکھا ہوا ہے, ان کی پیشانی کی تحریر بدل جاتی ہے. اشارہ فرماتے ہوئے حضرت مجدد الف ثانی کہہ رہے ہیں کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان کے زور بازو کا, نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. اب آپ اندازہ لگاؤ گوونڈی کے مسلمانوں, جب مرد مومن کی نگاہ کا یہ عالم ہے تو رسول کائنات کی مقدس نگاہ کا عالم کیا ہوگا, سرکار کی مقدس نگاہ کرم کا عالم کیا ہوگا. جب اس پار کا یہ عالم ہے اس پار کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. حضرت علامہ غلام محی الدین صاحب اللہ سبحانی. نعرہ تکبیر,
नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। आप जरा अंदाजा लगाइए, निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। कोई अंदाजा कर सकता है इनके जोरे बाजू का। डॉक्टर इकबाल का शेर आज भी लम्हे फिक्रिया बना हुआ है। डॉक्टर इकबाल के शेर को पढ़ने के बाद आप अंदाजा लगाओ, निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। मर्द मोमिन की निगाह, अल्लाह अकबर। इसीलिए तो बेकल बलरामपुरी ने कहा, जब इनके गादा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। और एक बात और अर्ज करता चलूं प्यारे, गोया डॉक्टर इकबाल का यकीदा है कि मर्द मोमिन की निगाह से तकदीर बदल जाती है। तकदीर की 3 किस्में हैं। 2 किस्मों की तकदीरों का मामला ये है, अल्लाह वालों की दुआओं से टल जाया करती हैं, और एक तकदीर की किस्म है कि जिसको फिर मुकद्दर कर दिया गया, उस पर कोई बहस नहीं हो सकती है। मसलन किसी की रोजी कम है, अल्लाह का वली दुआ कर दे रोजी बढ़ जाए। कोई साहिब औलाद नहीं है, अल्लाह का वली दुआ कर दे औलाद वाला हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान। कोई बीमार है, अल्लाह वाला दुआ कर दे वो अच्छा हो जाए। तो इन सारी चीजों का ताल्लुक उस तकदीर से है जो तकदीर अल्लाह के वली की दुआ से टल जाया करती है और उसका काम बन जाया करता है। निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो हो ज़ौक़े ईमा पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। न पूछ इन खिरका पोशों की, इरादत हो तो देख इनको, यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। अल्लाह का वली अपनी निगाह से क्या देखता है, आप कुर्बान जाओ। हजरत मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं और अपने वक्त के बहुत बड़े मुजद्दिद हैं। हजरत मौलाना रूम की मसनवी आज भी बहुत मशहूर व मारूफ है। मसनवी शरीफ बड़े धूमधाम से अहले इल्म में मकबूल है और अहले इल्म में मशहूर है। लोग बड़े ज़ौक़ व शौक़ के साथ मसनवी शरीफ को पढ़ा करते हैं। मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह एक मर्तबा अपनी दरसगाह में बैठे हुए हैं, आपके तमाम शागिर्द बैठे हैं, कीलो काल की बात हो रही है, बहसो तमहीस में लोग लगे हुए हैं, किताबें सामने रखी हुई हैं। एक अल्लाह का बंदा पहुंच गया और पहुंचने के बाद उसने कहा, या मौलाना ये चीज थे। ए मौलाना साहब ये क्या है। तब तक हजरत मौलाना रूम बोल पड़े, बाबा बाहर निकलो, ये कालस्त तू नमी दानी, बाहर चले जाओ, ये सब काल है, तुम नहीं जानते हो, ये सब इल्मी मामला है, तुम्हें इसके लिए कोई इल्म नहीं है। अल्लाह का मस्ताना एक निगाह डाल देता है कि लाइब्रेरी में आग लग जाती है और दरसगाह में बैठे बैठे वो लोग देख क्या रहे हैं, किताबें चल रही हैं, किताबों को बुझाने लगे, हाथ चल रहे हैं, इधर किताब उठाकर रख रहे हैं, उधर किताब उठाकर रख रहे हैं, एक अजीब भागम दौड़ हो जाती है, लोगों परेशान हो गए। मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, या दरवेश ये चीज ये क्या है, ए फकीर ये सब मामला क्या है। फकीर ने कहा, बाबा कालस्त मन नमी दानम, ये हालस्त तू नमी दानी, वो तो काल है जिसको मैं नहीं जानता हूँ और ये हाल है जिसको तू नहीं जानता है। इतना कहना था कि मौलाना रूम बोल पड़े कि मौलवी हरगिज़ न शुद्ध मौलाए रूम और ता गुलाम शम्स तब रेज़े नशूम।
मौलाना रूम उस वक्त तक मौलवी नहीं हुए जब तक शम्स तबरेज के गुलाम नहीं बन गए। ये अल्लाह का मुकद्दस बंदा शम्स तबरेज कहलाता है, जिसकी निगाह का आलम ये है ये कालस्त तू नमीदानी हालस्त मन नमीदानम, ये काल है तुम नहीं जानते हो, वो हाल है जिसको मैं नहीं जानता हूँ। आओ जरा देखो अल्लाह के वलियों को देखो, सारे अल्लाह के वलियों के सरदार गौसे आजम हैं, सारे वलियों के ताजदार गौसे आजम हैं, सारे वलियों में सबसे बड़े गौसे आजम हैं। आज भी गौसे आजम का फैजो करम जारी है और कल भी गौसे आजम का फैजो करम जारी था और कयामत तक गौसे आजम का फैजो करम जारी रहेगा। इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि जो वली कब्ल हुए बाद हुए या होंगे, क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो वली कब्ल हुए बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा, आका तेरा। अल्लाह अकबर। जो वली पहले हुए या जो बाद में होंगे या जितने हुए हैं, सारे लोग अपने दिल में गौसे आजम का एहतराम रख रहे हैं। एक बात और अर्ज करता चलूं हजरत, आज सरकार हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के इस शेर पर मेरी निगाह पड़ी। सरकार मुफ्ती आजम हिंद सरकार गौसे आजम की बारगाह में अर्ज करते हैं, ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है, ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। सुभान अल्लाह। आप जरा इस शेर को पढ़िए मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह को। वाकई ये शेर सरकार मुफ्ती आजम हिंद की वलायत पर दलालत कर रहा है। आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं, जो वली कब्ल हुए बाद हुए या होंगे, यानी जो पहले वली हुए या जो बाद में वली हुए या जो बाद में वली होंगे, सरकार गौसे आजम का अदब एहतराम सब दिल में रख रहे हैं। यही वजह है कि जब सरकार गौसे आजम ने इरशाद फरमाया था कि ये मेरा कदम हर अल्लाह के वली की गर्दन पर है, तो जो औलियाए किराम पहले हो गए थे उन्होंने भी अपनी गर्दनों को झुका दिया था, और जो औलियाए किराम मौजूद थे उन सबों ने भी अपनी गर्दनों को झुका दिया था, और जो कयामत तक होने वाले थे आलमे अरवाह में उन्होंने भी अपनी गर्दनों को झुका दिया था। ये सरकार मुफ्ती आजम हिंद है, ये दिल है, ये जिगर है, ये सर, ये आंखें हैं, ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। जो वली कब्ल हुए बाद हुए या होंगे, सब दिल में अदब रखते हैं मेरे आका तेरा। ये सरकार गौसे आजम पीरे पीरा मीरे मीरा हैं। गौस वो होता है जो टूटे हुए दिलों को जोड़ देता है, गौस वो होता है जो अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा कर देता है, गौस वो होता है जो अल्लाह के हुक्म से दिलों में रोशनी पैदा कर देता है, गौस वो होता है जो बेसहारों को सहारा दे दिया करता है, गौस वो होता है कि गौस का नाम लेवा रुस्वा नहीं होता है, गौस वो होता है कि गौस का नाम लेवा बेचैन नहीं होता है, गौसे आजम वो होता है कि उस गौस का नाम लेते रहो तो जिल्लत और रुस्वाई से दूर रहोगे। गौसे आजम अल्लाह के महबूब हैं। गौसे आजम तो वो गौसे आजम हैं, अल्लाह अकबर, जिनकी जिंदगी का एक एक शोशा और गोशा मिशाले हिदायत है। गौसे आजम वो गौसे आजम हैं कि जिनकी जिंदगी का एक एक माहौल देखा जाए तो ईमान के लिए जिला है, ईमान के लिए रोशनी है। सरकार गौसे आजम को देखना चाहते हो तो मैं आपको लम्हे फिक्रिया देता हुआ चलूं। ये मेरे घर की किताब नहीं है बल्कि मुखालिफ जमात के बहुत बड़े आलिम की किताब है, जिसको कहते हैं अल इफाजातिल यौमिया। अल इफाजातिल यौमिया मौलवी अशरफ अली थानवी की किताब है। अल इफाजातिल यौमिया में एक वाकया लिखा हुआ है कि सरकार गौसे आजम का एक कपड़ा धोने वाला धोबी था जो आपके कपड़े को धुला करता था। चुनांचे जब वो इंतकाल कर गया और उसे कब्र में रखा गया, अल्लाह के फरिश्ते आए, जब उससे सवाल करते हैं मन रब का, तेरा रब कौन है, तो वो जवाब देता है मैं गौस पाक का धोबी हूँ। तेरा दीन क्या है, तो फिर वो जवाब देता है मैं गौस पाक का धोबी हूँ। तेरा तू उस मर्द के बारे में क्या कहता था, तो फिर वो जवाब देता है मैं गौस पाक का धोबी हूँ। अल्लाह के फरिश्ते अर्ज
करते हैं रब की बारगाह में, मेरे मौला ये तेरा कैसा बंदा है, हम तो इससे इस्तिमारा से सवाल कर रहे हैं और ये इस तरह से जवाब दे रहा है। तो गैब से निदा आई, ए मेरे फरिश्तों मेरे इस बंदा को छोड़ दो, मैंने गौस के सदका में इसकी मग़फ़िरत फरमा दी है, अब्दुल कादिर के तुफैल इसकी बख्शिश हो गई है। उठाओ अल-फ़ाज़ातिल यौमिया मौलवी अशरफ अली थानवी की लिखी हुई है, ये मेरे घर की बात सही है, अगर हवाला गलत साबित हो जो चोर की सजा वो गुलाम मुहीउद्दीन सुबहानी की। फिर मैं पूछना चाहता हूं कि नजद की बदमाश औलादें मुनकिर क्यों हैं औलियाए किराम की करामतों के और उनकी अजमतों के इनकारी क्यों पाए जा रहे हैं। आओ देखो प्यारे उलमा इसकी तशरीह फरमाते हैं, बात बता दूं ताकि आपके जहन में सवाल न उभरने पाए। सरकार गौसे आजम का धोबी हूं ये क्यों बताया, उलमा यहां तशरीह फरमाते हैं और वहीं पर हाशिया लगाते हैं कि उस बंदे के कहने का मतलब यह है, ए अल्लाह के फरिश्तों मुझसे क्या सवाल कर रहे हो, जो दीन गौस का है वही मेरा है, जो अल्लाह गौस का है वही मेरा है, रसूलुल्लाह के ताल्लुक से जो गौस का अकीदा है वही मेरा है, क्या मुझसे सवाल कर रहे हो। इस तरह का मामला और इस तरह का हाशिया लगाया जाता है। अब आप जरा गौर फरमाइए, गौसे आजम को कहां कहां देखोगे, ये सरकार गौसे आजम पीरे पीरा मीरे मीरा हैं। मेरे बड़े पीर दस्तगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह एक मर्तबा जा रहे हैं, बगदाद का एक मैदान है, उस मैदान में बड़ी भीड़ भाड़ है। आपने पूछा ये कैसी भीड़ भाड़ है, लोगों ने बताया कि इराक का एक बहुत बड़ा मशहूर डाकू गिरफ्तार कर लिया गया है और आज उस डाकू को फांसी दी जा रही है, वो सूली पर चढ़ा दिया गया है, फांसी का फंदा लटका दिया गया है उसकी गर्दन में। चुनांचे सरकार गौसे आजम ठहर गए, सारे लोग तमाशाई बने हुए हैं, उसे फांसी के तख्ते पर चढ़ाया जाता है और फांसी का फंदा उसके गले में डाल करके जैसे इंतजार किया जाता है कि अब फांसी का फंदा खींचा जाएगा, अब उसको सूली दे दी जाएगी। वो एक निगाह पूरे मजमा पर डालता है और उसकी आंखों से आंसू बरसने लगे। उसी तौर पर उसकी निगाह सरकार गौसे आजम बड़े पीर के चेहरे पर भी पड़ गई और गौस पाक की निगाह उसके चेहरे पर पड़ गई। फांसी का फंदा खींच लिया गया, उसकी रूह कब्ज़े उनसरी से परवाज कर गई, लाश वारिसों के हवाला कर दी गई। जब उसको दफन कर दिया गया तो जिस काजी ने हुक्म दिया था उसको फांसी के लिए, उसी ने ख्वाब देखा कि वही डाकू जिसको मैंने फांसी दिलवाई है वो तो जन्नत में जा रहा है। मैंने उससे पूछ लिया, उसने सलाम किया पलट कर, कहा काजी साहब मैं अपने गुनाह और बदामालियों की बुनियाद पर तो जहन्नम ही का मुस्तहिक था, मगर अल्लाह की रहमत काम कर गई। मामला ये हुआ कि जब मुझे फांसी दिया जा रहा था तो उसी मजमा में मैंने निगाह दौड़ाई, बड़े पीर सैयदना गौसे आजम उधर से जा रहे थे, उनके चेहरे पर मेरी निगाह पड़ गई। जब फरिश्ते आए तो रब ताला ने इरशाद फरमाया, राज़ाब के फरिश्तों दूर हो जाओ और रहमत के फरिश्तों मेरे इस बंदे की रूह को तुम ले लो, इसलिए कि मेरी रहमत को यह गवारा नहीं है कि मेरा बंदा दुनिया से आखिरी बार मेरे महबूब बंदे अब्दुल कादिर का चेहरा देख ले रहा है, तो मेरी रहमत को गवारा नहीं है कि जिसकी निगाह अब्दुल कादिर के चेहरे पर पड़ जाए उसे मैं अज़ाब दूं, ये मेरी रहमत को गवारा नहीं है। इसलिए अब्दुल कादिर के सदका में इसकी मग़फ़िरत कर दी गई है। अब मैं आपको बताता चलूं प्यारे, जरा अंदाजा लगाओ, वली अल्लाह सरकार गौसे आजम के चेहरे पर गुनहगार की निगाह पड़ जाए तो खता माफ हो जा रही है, और जिस गुनहगार की निगाह नबी कौनैन के मुकद्दस चेहरे पर पड़ जाएगी उसकी खता क्यों नहीं माफ होगी, वो क्यों नहीं माफी पाएगा। इसीलिए तो अल्लाह के हबीब फरमा रहे हैं, अरे मेरे चेहरे की बात कर रहा है, मंजारा कबरी वजबत लहू शफा, उसने मेरी कब्र को देख लिया मैं उसे जन्नत दिला दूंगा, उसके लिए मेरी शफाअत हो गई है। रोज़े रसूलुल्लाह की हालत यह है, चेहरे रसूलुल्लाह का आलम क्या होगा। इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं, ए लोगो वली अल्लाह का चेहरा देख लो तो खताएं माफ हो जा रही हैं, वली अल्लाह का चेहरा देख लो तो रहमत की बरसात मिल जाए, वली अल्लाह का चेहरा देख लो तो गुनाह धुल जाए, वली अल्लाह का चेहरा देख लो तो बदबख्ती दूर हो जाए, वली अल्लाह का चेहरा देख लो तो रहमत व अनवार के माहौल में तुम मचलते हुए अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाते लेते चले जाओ। ए लोगों रसूलुल्लाह के मुकद्दस चेहरे पर निगाह पड़ जाए तो तुम्हारी जिंदगी का हाल ये होगा। आला हजरत अजीमुल बरकत अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह कि गर्चे हैं बेहद कुसूर
तुम हो अफू गफूर और बख्श दो जुर्मो खता तुम पे करो दुरूद बख्श दो जुर्मो खता तुम पे करो दुरूद। अल्लाह अल्लाह, आप बात चल रही है, जरा मुलाहजा फरमाओ। सरकार गौसे आजम पीर पीरा मीरे मीरा की बड़े पीर को कहां कहां देखोगे। आओ देखो, मैंने कल अर्ज किया था कि सरकार गौसे आजम बड़े पीर हैं। अब सरकार गौसे आजम की वो हालत हो गई है कि सरकार गौस पाक जमीन पर चल रहे हैं, मगर आपके भी कदम में कोई लड़खड़ाहट नहीं है। आप बोलने लगे तो आपकी जबान में कोई लफ्जिश नहीं है। सरकार गौस पाक पढ़ने के लिए गए, बड़े पीर दस्तगीर पढ़ते रहे। 17 या 18 बरस की उम्र शरीफ हो जाती है। आप पहली बार जब मदरसा में दाखिल किए गए, आपके वालिद गिरामी लेकर के गए उस्ताद के सामने, और बड़े पीर दस्तगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह पढ़ने के लिए बैठे। उस्ताद ने फरमाया, बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के बाद मुख्तलिफ रवायतें आई हैं कि सरकार गौस पाक ने कुरान शरीफ के 18 पारे वहीं पढ़ते चले गए। उस्ताद हैरान रह गए, कहा अब्दुल कादिर तुम मुझे पढ़ाने आए हो कि पढ़ने के लिए आए हो, और आगे पढ़ो। तो सरकार गौस पाक फरमाते हैं, मैंने कहा कि मुझको सिर्फ इतने ही याद हैं। मैं जब अपनी माँ के पेट में था तो मेरी माँ 18 पारे की हाफिजा थी, वो कुरान की तिलावत करती रहती थी, मैंने सुन सुन करके याद कर लिया है। सरकार गौस पाक फरमाते हैं कि जब मैं मदरसा में पहुंचता तो मेरे उस्ताद मुझको बुलाते और कहते, सही सही अब्दुल कादिर तुम बताओ तुम इंसान हो कि जिन्नुन हो। सरकार गौस पाक फरमाते हैं, मैं हंस पड़ता, मुझे हंसी आ जाती, और मैं अपने उस्ताद से कहता, नहीं मैं इंसान ही हूँ, मैं पैदा हुआ हूँ, मेरे बाप ये हैं, मेरी माँ है, मेरा ये खानदान है। ये एक रोज सरकार गौस पाक फरमाते हैं कि मैं अपने मदरसे में जैसे ही गया तब तक गैब से एक आवाज आती है, ए बच्चों अल्लाह के वली के लिए रास्ता खाली कर दो, जगह दे दो। आवाज तो सुनाई देती थी लेकिन आवाज देने वाला दिखाई नहीं देता था, मेरे लिए जगह खाली कर दी जाती थी। तब मैंने जान लिया कि मैं अल्लाह का वली हूँ। सरकार गौस पाक फरमाते हैं, मैं मदरसे से चला आ रहा था कि एक गाय जा रही थी, बच्चे भी जा रहे थे, बचपन के खेल कूद का माहौल होता है। सरकार बड़े पीर फरमाते हैं कि बच्चे खेल कूद रहे थे, मेरा भी ज़ौक बढ़ा, मैं आगे बढ़ करके उस गाय के दुम को पकड़ लिया। जैसे गाय के दुम को पकड़ा तब तक गाय घूम पड़ी और उसने मेरा नाम लेकर के जैसे कोई इंसान बोलता है ऐसे बोलने लगी। कहा, ए अब्दुल कादिर तुमको इसके लिए पैदा नहीं किया गया है। सरकार गौस पाक कहते हैं, उस गाय से इंसान की तरह से इस तरह आवाज सुन करके मैं कुछ खशियत महसूस किया, अपने ऊपर कुछ खौफ महसूस किया और भागता हुआ अपनी माँ के पास आया और माँ की गोद में मैं बैठ गया। माँ ने मुझको घबराते हुए देखा, पूछा, बेटा अब्दुल कादिर क्या बात है? तो मैंने माँ से सारा वाकया बयान फरमा दिया। माँ ने मेरी पेशानी को चूम लिया और दुआएं देने लगी। ये सरकार पीरे पीरा मीरे मीरा गौसे आजम हैं कि बचपन में इनके लिए आवाज आ रही है, अब्दुल कादिर तुम्हें खेलने के लिए नहीं पैदा किया गया है, ए अल्लाह के नेक बंदो, ए बच्चों अल्लाह के वली के लिए रास्ता दे दो। जब ये मकतब में जा रहे हैं तो आवाज आ रही है। सरकार गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर फरमाते हैं, मैं जिधर से जाता लोग मुझको देखते तो देखते रह जाया करते थे। उम्र का हिस्सा इस तरह से गुजरता चला जा रहा है। वालिदे गिरामी का इंतकाल हो गया। 17 या 18 बरस की उम्र सरकार गौस पाक की हो गई। माँ की खिदमत कर रहे हैं सरकार गौस पाक। एक रोज आपने अपने दिल में सोचा कि मैंने सुना था कि मुझको एक जानवर ने कहा था, अब्दुल कादिर तुमको इसके लिए नहीं पैदा किया गया है, लिहाजा मुझे खिदमत दीन के लिए पैदा किया गया है, और खिदमत दीन बिला इल्म दीन हासिल किए हुए ठीक तौर से कोई कर नहीं सकता है, इसलिए मुझे इल्म दीन हासिल करना चाहिए। अपने माँ के पास आए और माँ के पास आने के बाद अर्ज करते हैं, अम्मी। माँ ने कहा, हाँ बेटा। आप अर्ज करते, अम्मी जान मेरी तबीयत ये चाहती है कि मैं इल्म दीन हासिल कर लूं, इसलिए मुझे आप पढ़ने की इजाजत दे दें। माँ ने फरमाया, बेटा अगर इल्म दीन हासिल करना चाहते हो तो तुम्हें पढ़ने के लिए मेरी तरफ से इजाजत है। सरकार गौसे आजम अब सोचने लगे, मैं कहाँ इल्म दीन हासिल करने जाऊं। उस वक्त बगदाद और निशापुर ये दो ऐसे शहर थे जो इल्म दीन के मरकज माने जाते थे, लेकिन इन दोनों शहरों
में सबसे अजीम शहर और इल्मी माहौल से बगदाद की सरजमीन है। सरकार गौसे आजम ने इरादा फरमा लिया कि मुझे बगदाद जाना है और बगदाद में जाकर के इल्म दीन हासिल करना है। आज मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो बगैर इल्म दीन के दावा करते हैं कि मैं अल्लाह का वली हूं, ऐसे लोगों को गर्दन के मार दी जाए तलवार से। तसव्वुफ का दावा ये हराम खोर कर रहे हैं। अंगूठियां चंद पहन लेने से तसव्वुफ की हवा नहीं लगती है, छल्ले और चूड़ियां पहनने से तसव्वुफ की हवा नहीं लगती है। जिंदगी भर बदमाशी करते रहो और उसके बाद बड़े बड़े बाल रख करके बड़े बड़े बाबा बन जाओ और कुछ एजेंटों को फिट कर लो और कह दो हम ये कर डालते हैं, हम वो कर डालते हैं। और नमाज तो दिल में पढ़नी चाहिए, और नमाज पढ़ने से क्या होता है माज़अल्लाह, अभी तक तो ये खबीस गुनहगार था लेकिन अब हालत बदल करके काफिर हो गया। जो नमाज के ताल्लुक से इहानत करेगा उसका ताल्लुक इस्लाम से नहीं रहेगा। वलायत की हवा तुम्हें नहीं लग सकती है अगर इल्मे दीन नहीं है। बगैर आलिमे दीन हुए कोई वली हो ही नहीं सकता है। उलमाए अहले सुन्नत मौजूद है, इनसे पूछो। अब आप सवाल करोगे मगर सुबहानी साहब बहुत सारे वलियों की तारीखें मिल रही हैं कि जिन्होंने मदरसे में तालीम नहीं हासिल की है, जिन्होंने दस्तार नहीं ली है, जिन्होंने सनद नहीं ली है, मगर उन्हें अल्लाह का वली माना जा रहा है। सुन प्यारे, अल्लाह ताला जब किसी अपने बंदे को अपना वली बनाता है तो वली बनाने से पहले पहले उसे आलिमे दीन बना दिया जाता है। वो पहले आलिमे दीन बनता है, उसके बाद वो वली बनता है। बगैर आलिमे दीन बने हुए वो वली हो ही नहीं सकता है। वलायत के लिए इल्मे दीन जरूरी है। इसीलिए शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि बगैर इल्म के खुदा को नहीं पहचान सकते हो। अगर इल्म नहीं है तो तुम्हें खुदा की शनाख्त नहीं मिलेगी। अगर इल्म नहीं है तो तुम खुदा को पहचान नहीं सकते हो। अगर इल्म नहीं है तुम शरीयत के वसूलों से वाकिफ नहीं हो सकते हो। अगर इल्म नहीं है तो हलाल और हराम में फर्क नहीं महसूस कर सकते हो। अगर इल्म नहीं है तो मनहियात से, और शरीयत ने जिन चीजों की इजाजत दी है उन चीजों का इल्म तुम्हें नहीं होगा, तुम्हें वलायत की हवा कैसे लगेगी। आओ जरा देखो, सरकार गौसे आजम के ज़ौक़ को मुलाहज़ा फरमाओ। सरकार गौसे आजम का ज़ौक़ बता रहा है कि तुम्हें इल्मे दीन बढ़ करके हासिल करना चाहिए और इल्मे दीन के लिए ज़ौक़ अपना बढ़ाना चाहिए। सरकार गौसे आजम ने मां से इजाजत ले ली है। मां ने इजाजत दे दी, बेटा ठीक है हम तुम्हें इजाजत दे रही है, जाओ इल्मे दीन हासिल करने के लिए। सरकार गौसे आजम ने देखा कि एक तिजारती काफिला बगदाद की तरफ जा रहा है। उसी तिजारती काफिला के साथ चलने के लिए बड़े पीर दस्तगीर तैयार हो गए। वाकया सुनाना मकसद नहीं है, बल्कि जो बात जहनो फिक्र में उतार करके नतीजा सामने पेश करके आपके ईमान को एक ऐसी रोशनी देना चाहता हूं कि जिसमें आप एक अजीब ज़ौक़ और कैफ महसूस करें, उस पर गौर फरमाइए। सरकार बड़े पीर दस्तगीर जब तैयार हो गए तो मैंने फरमाया बेटा अब्दुल कादिर इधर आओ। अपने मां के पास गए। मां ने कहा ये 40 दीनार हैं, ले लो। तुम्हारे बाप के तरके से 80 दीनार मुझे मिले हैं, तो 40 तो तुम्हारे भाई अहमद के लिए हैं और ये 40 तुम्हारे लिए हैं। आपने फरमाया अम्मी जान इसको महफूज जगह पर कर दीजिए। चुनांचे आपकी सदरी में, आपके एबा में आपकी मां ने उन 40 दीनार को रख करके एक थैली बना करके उसमें सिल दिया। सरकार गौसे आजम ने उसको जेबतन फरमा लिया और जेबतन करके अब उस तिजारती काफिला के साथ चलने लगे। मां के कदम का बोसा लिया, मां को सलाम किया। मां ने दुआओं की छांव में अपने शहजादे को रुखसत किया। वक्त का गौस इल्म दीन हासिल करने के लिए आबादी से बाहर निकल रहा है और जब आबादी से बाहर निकलने लगे तो मां ने कहा बेटा अब्दुल कादिर एक वसीयत मैं तुमसे करती हूँ। मां कौन सी वसीयत है? बेटा एक वसीयत हमारी सुनते जाओ। आप फरमाते हैं अम्मी जान बताओ कौन सी वसीयत है? मां ने अपने बेटी की पेशानी का बोसा लेते हुए कहा बेटा अब्दुल कादिर कभी झूठ ना बोलना। मां वसीयत कर रही हैं बेटा अब्दुल कादिर कभी झूठ ना बोलना। जरा मां की निगाह भी मुलाहजा फरमाइए। आज क्या आप भी अपने बच्चों को ताकीद करते हो कि झूठ ना बोलना? क्या आज भी आप मिजाज देते हो कि झूठ ना बोलना? खुदा की कसम ए मुसलमानों, झूठ गुनाह के जड़ों की सबसे पहली जड़ है और झूठ तमाम गुनाहों की मां है। झूठ एक ऐसा गुनाह है, एक ऐसा गुनाह है कि जब झूठ समाज में राइज हो जाता है तो कौम की जिंदगी तबाह बर्बाद हो जाती है। जब झूठा आदमी हो जाता है तो उसकी रोजी कम हो जाती है। जब झूठा आदमी हो जाता है उसके चेहरे की रौनक बिगड़ जाती है। जब झूठ बोला करता है तो समाज में इंतशार फैल जाता है। जब वो झूठ बोला करता है तो तिजारत की तरक्कियां रुक जाया करती हैं। जब वो झूठ बोलता है तो बारिश रोक दी जाती है। जब वो झूठ बोलता है तो अमनो अमान उठ जाया करता है। जब वो झूठ बोलता है तो माहौल खराब हो जाया करता है। मर्द मोमिन झूठा नहीं होता। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबा मौजूद थे तो एक मर्तबा सहाबियों ने अर्ज किया था या रसूल अल्लाह
क्या मोमिन बुज़दिल हो सकता है? आका ने फरमाया हाँ मोमिन बुज़दिल हो सकता है। सरकार से सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह क्या मोमिन बखील भी हो सकता है? आका ने फरमाया हाँ मोमिन बखील हो सकता है। आका से सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह क्या मोमिन झूठा हो सकता है? आका फरमाते हैं ला, मोमिन झूठा नहीं हो सकता। वो फांसी के फंदे पर चढ़ जाएगा, झूठ नहीं बोलेगा। तलवार की छांव में जिंदगी गुजार लेगा, झूठ नहीं बोलेगा। फांसी का फंदा चूम लेगा, झूठ नहीं बोलेगा। फाके से जिंदगी गुजार लेगा, झूठ नहीं बोलेगा। जेल की हथकड़ी पहन लेगा, झूठ नहीं बोलेगा। जेल की सलाखों में जिंदगी गुजारने के वो अपने अय्याम तय कर लेगा, मगर वो झूठ नहीं बोलेगा। ए मुसलमान, नबी के फरमान पर गौर कर ले। नबी कौनैन इरशाद फरमा रहे हैं मर्दे मोमिन झूठ नहीं बोलता है। अगर तुम्हारी जबान से झूठ निकल जाए तो तुम अपने आप को इस हदीस की रोशनी में फैसला ले लो, तुम मोमिन हो कि नहीं, तुम्हारा ईमान सलामत रह गया कि नहीं। आज किस बेबागी से लोग झूठ बोल दिया करते हैं और किस तरह से हंसी मजाक में झूठ कह दिया करते हैं और कहते हैं ये तो मैंने मजाक के तौर पर कह दिया था। आज कुछ लोग ये जुमला